Now we have in C++, we have special type of variable which is called reference variable. Now what is that reference variable? So reference variable is an alias, that is another name for an already existing variable. Now reference variable is nothing but another name, another alias name. Alias, you know what is the meaning of alias? Let's say you have a name in the school and you have another name in the home. So you have two names, right? So if somebody will call you Ajay in the school and in the home they will call you Ajju, it means that both the name belongs to one person, right? At the same way, we have already existing variable, let's say x, int x equal to 10, and we want to make a variable, let's say a, and we have says like this a is an alias to x, so that a is nothing but the reference variable. Okay, let me show you one example. So let's assume that you have a variable int x and will initialize with 10. Okay, so what will happen? There is a space of 4 byte will be allocated to the variable x with the value 10, right? This is the thing which will happen when we'll execute this particular line. Let's say we have a reference variable concept. So what is that reference variable? Reference variable will be written like this: int ampersand a will be equal to x. Now what will happen here? Here, the same memory space will be allocated to A. It means that this particular memory location can be accessed with X as well as A. Means this particular memory address has two names, X and A. When I do cout X, what is the output? The output will be 10. When I do cout A, what is the output? The output will be 10. Get it? So, what is a reference variable? Reference variable is a type of variable which will work as an alias, means another name to another existing variable. So, x is already existing variable. So, that existing variable will give another name. That's all. What are the thing that we can do is, because x and a both the value of x and a both will have the value 10. So if we want to do like this, a equal to a plus 1, then what will happen when this line will execute? This 10 will become 11. Why? Because what we are doing is, this a value will be equal to, because the previous value was 10, now we are making it 1, so a value will become 11. When we do cout x, what is the output? Definitely the output will be whatever the value we have, so it is 11. If you want to do cout a, what is the output? The output is again 11. Why? Because right now the value is 11. So I think the concept of reference variable is clear. Okay. Now there is some property that you have to understand. Reference variable will not create a separate memory. It is not at all creating a separate memory. Instead, it is using the already created uh, variables memory. Okay. Next thing, when we want to make any variable as reference variable, we have to declare and initialize at one line. What is the meaning of declaration? If I do int x, then what will happen?
a memory will be created for x of 4 byte, right? After that I can do like this, x equal to 10. Then what will happen? The memory location will get the value 10, right? This is called declaration and this is called initialization. So in case of reference variable, the declaration as well as initialization will be done at the same time. Means at the one line we have to write like this. Like this is the declaration and this is the initialization. So declaration and initialization will be done in the same line as the normal variable and for the reference variable. So is it clear to all of you that this is a reference variable? The ampersand sign we have to write to differentiate, and we have to allocate the variable name which is already been created. अगर ये वेरिएबल नहीं है आपके प्रोग्राम में, इट विल गिव द एरर. अगर ये वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सेकेंड थिंग, आपको डेटा टाइप को भी देखना है कि आप जो डेटा टाइप बना रहे हो उसी डेटा टाइप का वेरिएबल है पहले से कि नहीं है. अगर आप इंटीजर बना रहे हो और इसको फ्लोट कर रहे हो, सो देयर विल बी अ मिसमैच. इफ यू आर मेकिंग अ इंटीजर, देयर विल बी अ कैरेक्टर, देयर विल बी अ मिसमैच. So you have to make sure that the data type of variable which you want to give to the alias with the help of reference variable would be the same. Okay. अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में क्या अंतर है. What is the difference between these two? So इस अंतर को देखने से पहले एक प्रोग्राम देख लेते हैं जहां पर हम रेफरेंस वेरिएबल को यूज किए हैं. ठीक है. So this is a simple example. In this particular example, inside the main, यहाँ पर कोई class नहीं है. Reference variable का concept आप लोग main में ही use करोगे, class में use नहीं करोगे generally. So यहाँ पर एक variable है I. Okay, this is I, and this is D. I is of integer type, D is of double type. उसके बाद हमने रेफरेंस वेरिएबल लिया int ampersand r. R is a reference variable and we have initialized or declared this particular reference variable with I. हमने एक और रेफरेंस वेरिएबल लिया s, उसको डिक्लेयर कर दिया d से. फिर हमने क्या किया, I की वैल्यू को 5 से इनिशियलाइज किया यहाँ पर और I की वैल्यू को प्रिंट किया और वैसे ही r के वैल्यू को भी प्रिंट किया. तो जब हम I की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली 5 इट इज गोइंग टू प्रिंट, एंड जब हम r की वैल्यू को प्रिंट करेंगे डेफिनेटली 5 इट इज गोइंग टू प्रिंट, बिकॉज r और I दोनों क्या हुआ, एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. या आप बोल सकते हैं दैट I and R are the two name to the same memory location. यहाँ पर D को इनिशियलाइज किया गया है 11.7 से, D के वैल्यू को प्रिंट किया गया है तो क्या प्रिंट होगा 11.7, और S की वैल्यू को भी प्रिंट किया गया है क्योंकि S हमारा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि हम डिक्लेयर किए हैं SD से. सो क्योंकि दोनों मेमोरी लोकेशन एक ही
वैल्यू को पॉइंट कर रही है, तो ये भी 11.7 प्रिंट करेगा. So this, I think this is clear to all of you, right? Now, what happened here? So what happened in that particular example? That we have created I and we have given another name R to that particular location. We have created D and we have given S to the same location. After that, I will be given the value 5 and D will be given the value 11.7. Now we'll print I. तो क्या प्रिंट होगा? 5. और R प्रिंट करेंगे तो भी 5 प्रिंट होगा. अगर D प्रिंट करेंगे तो 11.7 प्रिंट होगा. और अगर S प्रिंट करेंगे तो भी 11.7 प्रिंट होगा, राइट? Because both are actually two name for a same memory location. Okay. So what it is showing? It is showing the output. Value of I is 5. Value of I reference means the R value is also 5. Value of D is 5 and value of D reference is also 11.7. So you can see that I and R, D and S both belongs to the same memory location. अगर इसका मेमोरी लोकेशन प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे? हम लोग प्रिंट कर सकते हैं सी आउट %i. ऐसा करने से इसका जो मेमोरी लोकेशन है वो प्रिंट हो जाएगा. मेमोरी लोकेशन एक्चुअली हेक्सा डेसिमल में रहता है कुछ इस तरह से. इसके भी वैल्यू कुछ हेक्सा डेसिमल में रहेगा इस तरह से. ठीक है, तो प्रिंट होगा. तो यहाँ पर देखना है कि दोनों का मेमोरी लोकेशन एक ही है क्या. तो ये दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम होगा. वैसे ही अगर हमको डी सी आउट %d करेंगे और सी आउट %s करेंगे. एम्परसेंड क्या करता है? मेमोरी लोकेशन को फाइंड आउट करता है. तो दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम होगा. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं आउटपुट करके हो रहा है क्या. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि दोनों वेरिएबल आई और आर एक ही मेमोरी लोकेशन को बिलोंग करते हैं, तो जब हम प्रिंट करना चाहेंगे दोनों का मेमोरी लोकेशन तो सेम होना चाहिए, राइट? तो लेट्स सी दिस. यहाँ पर मैं लिखूंगा %i और
यहाँ पर मैं लिखूंगा %r। सो ये एम्परसेंड का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। द मीनिंग ऑफ एम्परसेंड इज, दिस एम्परसेंड इज द एड्रेस ऑफ आई एंड एड्रेस ऑफ आर। लेट्स सी रन हो रहा है क्या। देखो एड्रेस ऑफ आई क्या हुआ, दिख रहा है 7FFF5033A894। और आर का भी मेमोरी लोकेशन सेम है, मतलब आई और आर दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का मेमोरी लोकेशन भी सेम है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड लाइक। तो आई और आर दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, इसीलिए यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी दोनों का सेम आ रहा है हमारा मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस वेरिएबल। अभी अपने को देखना है कि रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो रेफरेंस वेरिएबल तो समझ में आ गया आप लोगों को। अभी इसी का देख लेते हैं पॉइंटर। अगर मान लो हमारा मेमोरी लोकेशन है आई के लिए, राइट, और हमने बनाया डी के लिए। अगर ये आर और एस जो कि हमारा रेफरेंस वेरिएबल था, अगर यही पॉइंटर होता तो कैसे करते हैं हम लोग। जो रेफरेंस वेरिएबल लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, ऐसा लिखे। हमारे पास आई हमने पहले किया, डबल लिया एस, राइट। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने लिखा था इंटीजर एम्परसेंड आई, सॉरी एम्परसेंड आर इक्वल टू आई, ये लिखा था। तो क्या हुआ था यहाँ पर, जो आर है वो एलियास हो गया आई के मेमोरी लोकेशन के लिए, वैसे ही एम्परसेंड एस विल बी इक्वल टू डी, तो ये डी के मेमोरी लोकेशन के लिए एलियास हो गया। अब मान लो ये आर और एस हमारा पॉइंटर है, मान लो, क्योंकि हम लोग दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, किसमें किसमें, रेफरेंस वेरिएबल में और पॉइंटर्स में। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी हमको को मान लो ये नहीं लिखते हैं हमारे कोड में, अभी लिखेंगे पॉइंटर के लिए। तो पॉइंटर के लिए क्या करेंगे, इंट पॉइंटर आर विल बी इक्वल टू आई करते हैं क्या, नहीं, पॉइंटर में हमेशा एड्रेस देते हैं। एड्रेस किसका, जिसका देना है, मान लो आई का एड्रेस। वैसे ही हमको मान लो एस को क्या बनाना है, पॉइंटर बनाना है, तो एस्ट्रिक एस लिखेंगे और उसमें क्या देंगे, सिर्फ डी की जगह में एड्रेस ऑफ डी देंगे। ठीक है, एड्रेस ऑफ डी। तो इससे क्या होगा, आई और डी तो बना हुआ है हमारा, आई और डी तो बना हुआ है हमारा। अब इसी को कौन पॉइंट करेगा, एक पॉइंटर पॉइंट करेगा। तो आर के लिए एक मेमोरी लोकेशन बन गया और एस के लिए भी एक मेमोरी लोकेशन बन गया। मान लो आई का जो मेमोरी जो एड्रेस है वो है X23FC। मान लो डी का मेमोरी लोकेशन है X073FC। सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी एड्रेस ऑफ आई। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ आई, देखो आर की वैल्यू क्या हो गई, एड्रेस ऑफ आई। सो एड्रेस ऑफ आई क्या है, X23FC। एंड एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एड्रेस ऑफ डी। सो एड्रेस ऑफ डी क्या है, 073FC, ये हो गया एड्रेस ऑफ डी। इट मीन्स आर इज पॉइंटिंग टू आई, दिस मेमोरी लोकेशन, and S is pointing to this memory location। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंटर। रेफरेंस वेरिएबल में कोई और मेमोरी नहीं बनता रेफरेंस वेरिएबल के लिए, है ना। ये उसी वेरिएबल का, एग्जिस्टिंग वेरिएबल का ही एलियास हो जाता है, अनदर नेम। लेकिन जब हम लोग पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर पॉइंट तो करता है सेम मेमोरी लोकेशन को जैसे रेफरेंस वेरिएबल कर रहा है, बट पॉइंटर के लिए एक मेमोरी बनेगा, मेमोरी लोकेशन बनेगा
जो कि एड्रेस स्टोर करेगी, ठीक है, इसका एड्रेस स्टोर करेगी। किसका एड्रेस? मतलब पॉइंटर का भी एक अलग से एड्रेस। ऑब्वियसली पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर के लिए एक मेमोरी है तो इसका भी एक अलग से एड्रेस होगा। मान लो इसका एड्रेस हो गया x53f सी, इस तरह से, और इसका एड्रेस हो गया मान लो 608f इन दैट। सो क्योंकि ये आर और एस दोनों पॉइंटर हैं, इनका ये तो अलग से मेमोरी मिल गया इनको, जिसमें कि एड्रेस स्टोर होगा, और उसका भी कुछ एड्रेस होगा क्योंकि ये मेमोरी है। एंड सो उसके बाद क्या लिखा गया है? उसके बाद लिखा गया है ऐसा, i = 5 किया गया है, राइट। और क्या किया गया है? d = 11.7 किया गया है। सी आउट किया गया है यहाँ पर i को, तो क्या प्रिंट हुआ? 5 प्रिंट हुआ। सी आउट करेंगे हम यहाँ पर, 5 कैसे प्रिंट होगा? हम लोग को लिखना पड़ेगा, r लिखना पड़ेगा कि एस्ट्रिक ऑफ r लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एस्ट्रिक ऑफ r। एस्ट्रिक ऑफ r मतलब r जिसको पॉइंट कर रहा है, तो किसको पॉइंट कर रहा है? r पॉइंट कर रहा है i को। तो एस्ट्रिक ऑफ r लिखेंगे तब जाके ये 5 प्रिंट होगा। वैसे ही सी आउट लो, d प्रिंट करो तो क्या प्रिंट होगा? 11.7। हमको 11.7 प्रिंट कराना है पॉइंटर से, तो कैसे प्रिंट करेंगे? एस्ट्रिक ऑफ s करेंगे तब जाके 11.7 प्रिंट। ठीक है, अभी देखो इसी को देख लेते हैं हम लोग प्रोग्राम के थ्रू। ओके, सो ये हुआ हमारा प्रोग्राम। अभी इसमें रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट को हटा देते हैं और इसके बदले पॉइंटर ले लेते हैं। तो हमारा एक पॉइंटर हो गया इंट एस्ट्रिक r, इसमें हम वैल्यू डाल दिए एड्रेस ऑफ i का, और डबल हो गया एक और पॉइंटर s, इसमें हम वैल्यू डाल दिए एड्रेस ऑफ d का। अभी देखो d सिर्फ डालोगे तो एरर देगा क्योंकि पॉइंटर हमेशा एड्रेस से ही लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? i की वैल्यू को प्रिंट कराया क्योंकि i की वैल्यू 5 है तो 5 प्रिंट होगा, और i का एड्रेस भी प्रिंट करा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? वैल्यू ऑफ पॉइंटर ऑफ i करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉइंटर ऑफ i, सो पॉइंटर ऑफ i क्या है? r है। अगर सिर्फ r मैं प्रिंट कराता हूं तो क्या प्रिंट होगा? एड्रेस ऑफ i, ठीक। और अगर मैं एस्ट्रिक r प्रिंट कराता हूं तो क्या प्रिंट होगा? वैल्यू जो कि r पॉइंट कर रहा होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद अगर s प्रिंट करा, s का देख रहे हैं, पहले एक का देख लेते हैं, इसको अभी कमेंट आउट कर लेते हैं, ज़्यादा में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा हमने क्या किया है, i की वैल्यू लिया है 5। अब i की वैल्यू को अगर प्रिंट करेंगे तो 5 प्रिंट होगा, और एड्रेस ऑफ i करेंगे तो i का एड्रेस प्रिंट होगा। दूसरी बात, अगर हम लोगों को r प्रिंट कराना है तो r क्या प्रिंट करेगा? क्योंकि r में तो एड्रेस ऑफ i है, तो एड्रेस ऑफ i प्रिंट होगा। अभी मुझे वैल्यू चाहिए किसका? i का। तो r पॉइंट कर रहा है i को, तो उसके लिए एस्ट्रिक ऑफ r प्रिंट कराना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू मतलब 5 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर कैसे प्रिंट हुआ? 5 एड्रेस, और ये हुआ एड्रेस 5। आया समझ में? ऐसे प्रिंट होगा। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ, रन करके देखते हैं। अभी देखो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। देखो पहले क्या प्रिंट हुआ? i की वैल्यू प्रिंट हुआ 5, और ये i का एड्रेस प्रिंट हुआ, दिख रहा है। यस सर। उसके बाद फिर हम लोग पॉइंटर जो r है,
आर को प्रिंट करना है, क्योंकि आर में क्या है, एड्रेस ऑफ आई है, ठीक है। तो आई आर प्रिंट करने पर आर की वैल्यू प्रिंट हुई, तो आर की वैल्यू डेफिनेटली एड्रेस है। जब हम लोग एस्ट्रिक आर करेंगे तब जाके वो क्या करेगा, उस पॉइंट पे जाएगा जहां पे वो पॉइंट कर रहा है और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, मतलब 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर इसको एग्जांपल को देखें आप, तो इसको एक सिंपल वे पे समझना चाहें तो हमने क्या किया था, हमने एक आई लिया, आई में हमने 5 डाला, एक आर लिया, आर इज अ पॉइंटर, so let's assume that the address is 1020, ये आ गया यहाँ पर एज अ वैल्यू 1020, और जब हम सी आउट करेंगे आर तो क्या प्रिंट होगा 1020, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है 1020। जब हम लोग सी आउट करेंगे आई तो क्या प्रिंट होगा, आई के अंदर क्या है 5, ठीक है। जब जब हम एड्रेस ऑफ आई प्रिंट करेंगे तब क्या प्रिंट होगा, एड्रेस 1020। जब हम लोग एड्रेस ऑफ आर करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, आर का एड्रेस मान लो है, आर का एड्रेस 2020, तो आर का एड्रेस क्या प्रिंट होगा 2020। बट अपने को वैल्यू चाहिए, तो आर क्या है, आर जब बाहर है तो आर है, आर जब अंदर आ गया तो ये हो गया एस्ट्रिक ऑफ आर। तो एस्ट्रिक ऑफ आर जब प्रिंट कराते हैं तो एस्ट्रिक ऑफ आर क्या है 5, तो अभी 5 प्रिंट करें, ठीक है। अब r की वैल्यू को मैनिपुलेट करना है थ्रू द पॉइंटर, सॉरी i की वैल्यू को मैनिपुलेट करना है थ्रू द पॉइंटर, कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, मान लो हम लोगों को एक इंक्रीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक ऑफ r प्लस प्लस is same as i प्लस प्लस, समझ में आया। सो एस्ट्रिक ऑफ r इज सेम एज i, ठीक, r is same as address of i, ठीक। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। ये पॉइंटर का कंसेप्ट आपने ऑलरेडी सी में पढ़ा हुआ है, वी आर जस्ट रिमाइंडिंग इट, ठीक है। नाउ विल सी टू प्रोग्राम। इन वन प्रोग्राम we'll use the pointer and swap two number. Another program will use the reference variable to swap two numbers, ठीक है, ओके। सो ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग पॉइंटर के थ्रू दो नंबर को स्वैप कर रहे हैं, ठीक। स्वैपिंग का तो आप लोगों को पता है, स्वैप का मतलब क्या होता है, एक एक वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में डालना, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। हमारा ये हो गया सिग्नेचर, किसी फंक्शन का सिग्नेचर है ये। उसके बाद फंक्शन का डेफिनेशन है। सो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसका नाम स्वैप है, इसके अंदर में दो पॉइंटर है x एंड y। क्योंकि पॉइंटर है हमको एड्रेस डालना पड़ेगा इसमें, सो विल कॉल दिस पर्टिकुलर फंक्शन बाय रेफरेंस। सो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू यू ऑलरेडी नो, तो दिस इज द कॉल बाय रेफरेंस। देखो यहाँ पर एड्रेस डाल के उसको कॉल किया गया। Now you just see the logic here. The logic is we are taking a temporary variable temp, और temp में हम x जिसको पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को डालेंगे,
फिर जो पॉइंट जहां पर हो रहा है उस वैल्यू में y जो पॉइंट कर रहा होगा उसको डालेंगे। फिर उसके बाद y जहां पर पॉइंट कर रहा है उसमें टेम्प डाल देंगे। ठीक। और मेन में हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल ले रहे हैं और दोनों वेरिएबल को इनपुट करा रहे हैं यूजर से। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ए और बी, इसको बोल रहे हैं बिफोर स्वैप, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी। उसके बाद हम फंक्शन कॉल करेंगे ए और बी का, और उसके बाद फिर ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे आफ्टर स्वैप। ठीक। सो ये कैसे काम कर रहा है, चलो इसको देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो यहां पर हमारा टू वेरिएबल हमने लिया, एक है ए और दूसरा है बी। ठीक। ये जो दोनों वेरिएबल है, क्योंकि हमारा मेन से एग्जीक्यूशन चालू होगा तो हम यहीं से करेंगे। पहला इंड ए और बी, तो हमने बना लिया भाई ए के लिए और बी के लिए। दूसरा एंटर टू वैल्यू फॉर ए एंड बी, ये डिस्प्ले हो जाएगा और इनपुट ले लेंगे ए और बी के लिए यूजर से। सो यूजर दे देगा इनपुट ए और बी का। मान लो यूजर ने दिया, पहला वैल्यू दिया 10, दूसरा वैल्यू दिया 20। सो 10 चला गया ए के अंदर, 20 चला गया बी के अंदर। उसके बाद क्या हो रहा है, हम प्रिंट करा रहे हैं ए और बी की वैल्यू। क्या प्रिंट करेगा, डेफिनेटली ए की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट करेगा, बी की वैल्यू 20 है तो 20 प्रिंट करेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं स्वैप फंक्शन विद द एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी। सो एड्रेस ऑफ ए मान लो एड्रेस है, इसका एड्रेस है मान लो 1020 और इसका एड्रेस है मान लो 2020। ये दोनों एड्रेस को हम किसको दे देंगे, स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये है पॉइंटर, एक एक्स पॉइंटर है और एक वाई पॉइंटर। तो दो पॉइंटर है यहाँ पर जो कि बने हुए हैं, तो हम लोग एक मेमोरी बना देंगे एक्स के लिए और एक मेमोरी बना देंगे वाई के लिए। इस मेमोरी में क्या चला गया, अभी 1020 चला गया और इस मेमोरी में क्या चला गया, 2020 चला गया। ठीक। इसका मतलब x किसको पॉइंट करेंगे, ए को, और y किसको पॉइंट करेंगे, b को। ठीक। इतना हमने कर दिया जब हमने एड्रेस किसको असाइन कर दिया, इस पॉइंटर को। अभी पहला क्या किया हम लोग, एक टेम्प करके एक वेरिएबल लिया। एक वेरिएबल ले लो, ये है हमारा वेरिएबल कॉल टेम्प। अब इस टेम्प वेरिएबल में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, पहला पहला काम कर रहे हैं कि टेम्प में डाल रहे हैं एस्ट्रिक ऑफ एक्स। सो मैंने क्या बोला था, x क्या है 1020, एस्ट्रिक ऑफ x क्या है यहाँ पर, एस्ट्रिक ऑफ x दिस इज 10। सो हमने क्या किया, एस्ट्रिक ऑफ x मतलब 10, 10 को किसको असाइन किया, टेम्प को। एस्ट्रिक ऑफ x मतलब 10, 10 को असाइन किया टेम्प को। उसके बाद एस्ट्रिक ऑफ x इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ y। एस्ट्रिक ऑफ y क्या है, ये है एस्ट्रिक ऑफ y मतलब 20, 20 किसको असाइन किया, एस्ट्रिक ऑफ x को, तो ये हो गया 20। उसके बाद हमने क्या किया, एस्ट्रिक ऑफ y इक्वल टू टेम्प, मतलब एस्ट्रिक ऑफ y में हमने अपडेट किया वैल्यू टेम्प का, तो टेम्प क्या है 10। सो इसमें क्या कर दिया हमने 10। तो अभी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ की वैल्यू हो गई 20 और यहाँ की वैल्यू हो गई 10। अब जब हम सी आउट करेंगे, सी आउट करेंगे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगी, तो ए की वैल्यू क्या है अभी 20 और बी की वैल्यू क्या है अभी 10। तो हमारा स्वैप हो गया। दैट इज अ क्लासिकल स्वैप प्रोग्राम। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड इट, राइट? Yes, sir. Now we'll do the swapping with the help of reference variable। अभी reference variable से swap करेंगे, तो उसके लिए प्रोग्राम देख लेते हैं।
चलो इसी को मॉडिफाई करते हैं। अभी हम लोग एड्रेस नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, वैल्यू डालेंगे, ठीक। और ये पॉइंटर नहीं है, ये क्या है अभी, रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका रेफरेंस वेरिएबल और ये हो गया आपका वैल्यू। और लॉजिक क्या हो जाएगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, उसमें x की वैल्यू को डाल देंगे, x के वैल्यू की जगह में हम y के वैल्यू डाल देंगे और y के वैल्यू की जगह में टाइम डाल देंगे। बस यही मॉडिफिकेशन। क्या हुआ, हमने लिया पॉइंटर के जगह में रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल में असाइन किया a को और दूसरे रेफरेंस वेरिएबल में असाइन किया b को। एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, x की वैल्यू को टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया, y की वैल्यू को x में डाल दिया और टेम्परेरी वेरिएबल को y में डाल दिया, ठीक। इसको रन करके देख, अच्छा ये हुआ आपका सिग्नेचर। अब सिग्नेचर मिसमैच नहीं करता तो अभी एरर आ जाता, ये हुआ आपका सिग्नेचर। चलो इसको भी रन करते हैं। ये मांग रहा है इनपुट, हम लोग वही डालते हैं, 10 डाल देते हैं और 20 डाल देते हैं। तो स्वैप से पहले a की वैल्यू 10 हो गई, b की वैल्यू 20, आफ्टर स्वैप a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 10, तो स्वैप हो गया, राइट। कैसे हुआ अभी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर a तो था, b भी था, कैसे, मेन पे जाओ, ये पहला लाइन है a और b। फिर हमने एंटर करवाया a और b को, मान लो हमने डाल दिया 10 यहाँ पर और 20 यहाँ पर। फिर हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है, हमारा प्रोग्राम बोलता है कि a और b की वैल्यू को प्रिंट करा दो। तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 10 और b की वैल्यू यहाँ पर हो गई 20, जो कि प्रिंट कर लिया हमने। फिर उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद स्वैप करो a और b को, फंक्शन को कॉल करो। तो a किसको असाइन हुआ, x को, b किसको असाइन हुआ, y को। इट मीन x और y क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है, तो कोई मेमोरी क्रिएट नहीं होगा x और y के लिए। इंस्टेड एक अगर अलग सा नाम किसको मिल जाएगा, a को अलग सा नाम मिल गया x और b को अलग सा नाम मिल गया y। अभी हमारा पहला क्या था कि एक टेम्प वेरिएबल हो, टेम्प में हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले x की वैल्यू को डाल दिए हैं। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू है 10, तो 10 को डाल दो। दूसरा हमने क्या किया है कि x के वैल्यू की जगह में y की वैल्यू को डाल दो। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, जो भी है, y की वैल्यू को डाल दो, तो ये हो गया 20, x की वैल्यू हट गया यहाँ से। उसके बाद क्या किया है, y की वैल्यू की जगह में टेम्प डाल दो। तो y की वैल्यू क्या है हमारा, कोई भी हो, हम उसमें क्या डाल देंगे, टेम्प डाल देंगे, तो ये हो गया 10, राइट। तो उसको अच्छे से लिख लो, यहाँ पर हो गया 20 और यहाँ पर हो गया 10। तो हमने लिख लेते हैं यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10। अब जब प्रिंट करेंगे a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 20 और जब b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। दैट इज अगेन स्वैपिंग विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोगों को और मेमोरी एड्रेस और मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत पड़ी बिकॉज ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर पॉइंटर एंड द रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल बहुत यूजफुल है आगे जाके, जब हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यूज करेंगे, उस समय रेफरेंस वेरिएबल का बहुत बड़ा एक रोल है जिसको हम लोगों को देखना है, ठीक है।